Greetings everyone, my name is Priyanka, and in this video we are going to quickly recapitulate classified advertisements, and we'll also learn how to solve multiple choice questions based on this topic. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न व्हाट क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स आर. हम फटाफट उसे रिवाइज करते हैं. एज द टर्म इट सेल्फ डिनोट्स, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स आर द टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स दैट आर ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज. ऐसे एडवर्टीजमेंट्स जो कई तरह की कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं एज पर द सब्जेक्ट मैटर. सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग दे आर ऑल कॉल्ड क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स. अब हम फटाफट इसका फॉर्मेट देखते हैं. तो जब हम फॉर्मेट की बात करते हैं, देन नो कंप्लीट सेंटेंसेज आर टू बी यूज्ड इन क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स बिकॉज हमें कॉस्ट कम रखनी होती है, एंड वी हैव टू यूज स्मॉल फ्रेजेस, एंड we also have to try to avoid helping verbs like is, am, are, was, were, has, have, had, etc. And one more thing is there, these classified advertisements are written in a box और उनकी जो word limit है वो होती है 50 words की. Okay, we do not have to exceed this word limit as well. Now we'll see how many types of classified advertisements we have in our syllabus and what is the purpose of writing them. तो द फर्स्ट टाइप विच वी हैव इज़ फॉर सेल, और ये क्या होता है? इट इज़ रिटन टू सेल एसेट्स, प्रॉपर्टी, गुड्स एक्सेट्रा. इट मीन्स इट इज़ रिटन बाय द सेलर. जो सेलर है, द वन हु वांट्स टू सेल हिज प्रोडक्ट, दैट पर्सन पब्लिशेज दिस. सेकेंड टाइप इज़ टू लेट. टू लेट मीन्स किसी को किराए पे घर देना. लाइक इट इज़ रिटन बाय अ पर्सन लुकिंग फॉर टेनेंट्स. ओके, इफ़ आई वॉन्ट टेनेंट्स फॉर माई हाउस और माई office space or anything, then I would publish under this heading to let. तीसरा जो टाइप है, that is accommodation wanted. It is written by a person looking for accommodation. Okay, तो इन दोनों में एक डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है? टू लेट वो पर्सन लिखता है जिसको कि टेनेंट्स चाहिए. ओके, नीड्स टेनेंट्स, फाइन, एंड needs tenants, and accommodation wanted is published by the person who needs accommodation. Okay, उसको खुद को चाहिए होता है accommodation, maybe for office or to live, anything. Okay, अब हम आते हैं situation wanted पे. situation wanted is written by a person seeking job. यहाँ बहुत ही ध्यान से सुनिएगा. Situation wanted and vacant, always people get confused. Situation wanted actually is written by a person who is seeking job, जो job ढूंढ रहा है. And situation vacant is written by a person or company or institute which is willing to hire employees, जो job दे रहा है. That category is called situation vacant, और जिसको job चाहिए वो जो category होती है, that is situation wanted. Now, next type which we have in our syllabus is educational. It is written by educational institutes to publicize themselves. वो अपनी publicity करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा students उनके educational institute की ओर attract हों. Now, next is missing. Missing is written by people searching for missing objects, pets or people. Okay, either it can be about some object which is lost, or it can be about a pet like dog, cat, buffalo, cow, anything, or a person who is missing. Next category is tours and travels, and as the name goes itself, it is written by traveling companies to attract clients to their plans. And last one type which we have in our syllabus, it is matrimonial, and it is written by people looking for suitable match for marriage. Okay, ये ब्राइड वॉन्टेड हेडिंग से भी लिखा जाता है, एंड दिस वन इज रिटन अंडर द हेडिंग ग्रूम वॉन्टेड एज वेल. ओके, अकॉर्डिंग टू द नीड जिसकी रिक्वायरमेंट है. नाउ विल सी एन एग्जाम्पल हियर. इट इज, you are the director of an educational institution. Write an advertisement for publication in a newspaper for admission to the various courses being offered by your institute. Okay, I hope the question is clear. Now, first of all, you will write the heading कि कौन से heading के अंदर आपका advertisement fall करता है. तो ये कौन सी category हो गई, कौन सा classification है? ये है educational. Now see how it is written.
Excel Institute offers 1 year diploma courses in computer programming and business management. Eligibility senior secondary batches 20 each. Practical and field work experience provided. Excellent faculty fee also is mentioned here. Last date to apply also is mentioned here. And contact. See, this is very, very important to mention contact. And it is often added towards the end of the advertisement. Fine. So now this is just a general idea of what an advertisement is and how it is written. Now we'll see what types of questions are about to be asked in your term 1. टर्म 1 जो कि कम्प्लीटली MCQ बेस्ड होने वाला है, उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एडवर्टीजमेंट से. सो वी हैव क्वेश्चन 1. विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट्स इज रिटन बाय एन एम्प्लॉयर. अभी मैंने आपको बताया कौन सा है, एजुकेशनल है, सिचुएशन वेकेंट है, सिचुएशन वांटेड है या टू लेट है. तो आप देखिए क्या है यहाँ पे, रिटन बाय एन एम्प्लॉयर. सो ऑब्वियसली आई वांट टू हायर एम्प्लॉयज एंड व्हाट कैटेगरी इट वाज सी, सिचुएशन वेकेंट. Now we come to the next question. It is, one should always add then a blank at the end of an advertisement. अभी मैंने बताया जब मैं आपको यहाँ पे सैम्पल एक्सप्लेन कर रही थी that contact detail. Okay, so C is correct here also. Now question number 3 is, in a missing person or pet advertisement mentioning of मस्ट बी अवॉइडेड. क्या मेंशनिंग ऑफ रिवॉर्ड? नहीं, हम रिवॉर्ड तो मेंशन करते हैं, तो ये नहीं होगा हमारा आंसर. फिजिकल फीचर्स ये तो बताने पड़ेंगे कि आपका अगर डॉग खो गया है तो वो दिखता कैसा है, हाइट, उसका वेट, कलर, ये सब बताना ही है. सो फिर आता है कैरेक्टर ट्रेट्स, ये हम अभी देखते हैं. फोन नंबर, फ़ोन नंबर भी हम बताते हैं कि आखिर जिसको मिला है वो कॉन्टैक्ट कहाँ करेगा. सो सी इट मीन्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. कैरेक्टर ट्रेट्स मीन्स दैट माई डॉग इज़ वेरी ग्रम्पी और माई कैट इज़ वेरी ग्रम्पी और द पर्सन, इफ सम पर्सन इज़ लॉस्ट, तो हम ऐसे नहीं बोलते कि ही इज़ इल टेम्पर्ड और समथिंग. सो दिस इज़ आर आंसर. सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर ऑफ दिस क्वेश्चन. Question 4. Which tense is preferably used in a classified advertisement? तो हम पास्ट तो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि पास्ट की बात हम कर नहीं कर रहे हैं, हम जॉब ऑफर कर रहे हैं या हम चीज़ों के लिए पब्लिश कर रहे हैं. तो फ्यूचर भी नहीं करेंगे, हम प्रेजेंट का यूज़ करते हैं बिकॉज हम सब चीज़ें प्रेजेंट में बता रहे हैं. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. अब यहाँ पे ये हो सकता है दैट यू विल बी गिवन एन इनकम्प्लीट एडवर्टीजमेंट. आपको कोई भी इनकम्प्लीट एडवर्टीजमेंट दे दिया जाएगा. एंड सी in a single advertisement many types of questions can be formed. अब देखो यहाँ पे same advertisement में how many questions are formed? 1, 2, then 3, then 4, then 5 questions are formed. Okay, word limit क्या थी हमारी? 50 words and out of this only 5 questions are formed. अब यहाँ पे हमें देख लिया, हमें अगर हमें फॉर्मेट क्लियर है, चीज़ें क्लियर है, तो हम इसको आंसर कर लेंगे. अब क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे क्या आएगा, हमें ये आंसर करना है. तो ऑप्शन इज सिचुएशन वेकेंट, अकोमोडेशन वांटेड, टू लेट, सिचुएशन वांटेड. अब हमें इसके लिए पढ़ना पड़ेगा. समथिंग इज रिटन हियर, टू डिज़ाइन द इंटीरियर्स ऑफ अ कैफे रन एंड मैनेज्ड ओनली बाय विमेन, द समथिंग मस्ट हैव इन डिज़ाइनिंग रेम्यूनरेशन विद गुड इंसेंटिव्स. अब जब इंसेंटिव्स कोई ऑफर कर रहा है फॉर डिज़र्विंग कैंडिडेट, कि डिज़र्विंग कैंडिडेट को अच्छा रेम्यूनरेशन और इंसेंटिव मिलेगा, तो अब यहाँ पे हम क्या समझते हैं कि यहाँ पे जॉब ऑफर की जा रही है. फाइन, तो ये कैटेगरी यहाँ पे आती है. तो नंबर 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिचुएशन वांटेड. ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. नाउ वी सी नेक्स्ट वन. नाउ वी हैव नंबर 6. 6 इज व्हाट? wanted an interior designer, required an interior designer, या फिर to let a post of an interior designer. ये wrong है. यहाँ पे हम both A and B इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं. तो 6 पे क्या आता है? D आ जाता है. अब हम 7th पे आते हैं. The then something must have, then again we have a blank in designing. अब नंबर 7 हम देखें, सॉरी 7 here. द बॉय ये नहीं लिखते हैं हम, द गर्ल मस्ट हैव ये भी नहीं लिखते, हम लिखते हैं द कैंडिडेट. एम्प्लॉय हम नहीं लिख सकते क्योंकि अभी तक जॉब उसको मिली नहीं है. फाइन, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर. 7th का सी करेक्ट है. ओके, नाउ वी सी नंबर 8. अब ये क्या हो गया? द कैंडिडेट मस्ट हैव डैश इन डिज़ाइनिंग. अब
एट्थ पे क्या है, लेक्स एक्सपीरियंस, ऐसा तो कोई मांगता नहीं है। मीडियोकर एक्सपीरियंस, ये भी कोई कंपनी या हायरिंग बॉडी नहीं मांगती है। एडिक्वेट एक्सपीरियंस, एडिक्वेट मीन्स एनफ एक्सपीरियंस, ओके, in the field of designing. Now we see here what was the option. We'll see first, it was C, so 8 we get here C. Now number 9 dash, remuneration with good incentives for deserving candidate. अब हम देखें 9th पे क्या क्या ऑप्शन है। अट्रैक्टिव, बेसिक, नो, नो तो हम करेंगे नहीं, सम भी नहीं बोलते हैं, बेसिक भी नहीं, हम अट्रैक्टिव बोलते हैं, ओके। सो नंबर 9 वी गेट ऑप्शन ए. That was all about this video. Thank you everybody for watching.